सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले इसमें भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स के हम फॉर्मूले याद कर लेंगे, लेकिन उसे डिराइव करके याद करेंगे। पहला, इफ y is equal to sin inverse x, then dy by dx is equal to 1 upon under root 1 minus x square। सो पहले हम इसे डिराइव करते हैं। y is equal to sin inverse x, therefore x is equal to sin y, and if x is equal to sin y, differentiate with respect to x। So 1 is equal to sin y का डिफ्रेंसिएशन cos y, and then y का डिफ्रेंसिएशन dy by dx। Therefore dy by dx is equal to 1 upon cos y, dy by dx is equal to 1 upon under root cos square y। cos y अंडर रूट में लिया इसलिए cos square y। So dy by dx is equal to 1 upon under root 1 minus sin square y। और अब यहाँ पे sin y is x, so sin square y x square, so dy by dx is equal to 1 upon under root 1 minus x square। so हमें ये बेसिक सा फॉर्मूला हमें याद भी रहना चाहिए। सेम हम अब सेकेंड के लिए निकालेंगे। इफ y is equal to cos inverse x, then dy by dx is equal to minus 1 upon under root 1 minus x square। इसे भी डिराइव करते हैं। y is equal to cos inverse x, therefore x is equal to cos y, differentiate with respect to x, so x का डिफ्रेंसिएशन 1 cos y minus sin y dy by dx। Therefore dy by dx is equal to minus 1 upon sin y। dy by dx सेम उसी मेथड से minus 1 upon under root 1 minus sin square y, सॉरी sin y, sin square y अंडर रूट में dy by dx minus 1 upon under root 1 minus cos square y, और cos y है x, so cos square y will be x square, so dy by dx is equal to minus 1 upon under root 1 minus x square। सेम हम फॉर्मूला निकालेंगे। y is equal to tan inverse x। if y is equal to tan inverse x, dy by dx is equal to 1 upon 1 plus x square। y is equal to tan inverse x, therefore x is equal to tan y। if y is equal to tan inverse x, x is equal to tan y। so अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, so x का 1 tan y sec square y dy by dx, tan y sec square y dy by dx, so dy by dx is equal to 1 upon sec square y, and then by identity dy by dx is equal to, अब sec square y की हमें आइडेंटिटी बताया 1 plus tan square y, so dy by dx हो गया 1 upon 1 plus x square। सेम ऐसे ही हम बाकी के 3 फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ cot inverse x, डेरिवेटिव ऑफ sec inverse x, डेरिवेटिव ऑफ cosec inverse x। नेक्स्ट, if y is equal to cot inverse x, then dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x square। इससे भी डिराइव करते हैं। y is equal to cot inverse x, therefore x is equal to cot y, differentiate with respect to x, so 1 is equal to minus cosec square y dy by dx, therefore dy by dx is equal to minus 1 upon cosec square y।
dy by dx is equal to minus 1 upon cosec square y. So dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus cot square y, again using identity. So dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus cot square y, cot y x, so cot square y x square. Fifth, if y is equal to sec inverse x, then dy by dx is equal to 1 upon x under root x square minus 1. If y is equal to sec inverse x, dy by dx is equal to 1 upon x under root x square minus 1. So y is equal to sec inverse x, same. Therefore x is equal to sec y. Differentiate with respect to x. So dy by dx, sorry x का 1, sec y का sec y into tan y into y का dy by dx. So dy by dx is equal to 1 upon sec y into tan y. 1 upon sec y और tan y को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट tan स्क्वायर y, 1 upon sec y और अंडर रूट tan स्क्वायर y मीन्स sec स्क्वायर y माइनस 1. सो ये हुआ dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन sec y के बदले x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1. If y is equal to cosec inverse x, if y is equal to cosec inverse x, then dy by dx, if y is equal to cosec inverse x, then dy by dx same यही बस माइनस साइन. So minus 1 upon x into under root x square minus 1. So y is equal to cosec inverse x. Therefore x is equal to cosec y. Differentiate with respect to x. So x के बदले 1 minus cosec y into cot y dy by dx. Therefore dy by dx is equal to minus 1 upon cosec y into cot y. Now dy by dx is equal to minus 1 upon cosec y into under root cot square y. सेम वैसा ही जैसा भी हमने बनाए थे. dy by dx is equal to minus 1 upon cosec y into under root cosec square y minus 1. So dy by dx is equal to minus 1 upon cosec y के बदले x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो अब पहले पूरे 6 फॉर्मूले हम रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1 upon under root 1 minus x square. Third, d by dx of tan inverse x 1 upon 1 plus x square. Fourth, d by dx of cot inverse x -1 upon 1 plus x square. d by dx of sec inverse x 1 upon x under root x square minus 1. And 6, d by dx of cosec inverse x -1 upon x under root x square minus 1. So अगर हमने ये बेसिक फॉर्मूले याद कर लिए तो ये पूरी एक्सरसाइज हमें सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी है. लेकिन अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो ये एक्सरसाइज बहुत हार्ड जाती है. सो सबसे पहले ये फॉर्मूलोज की प्रैक्टिस करना जरूरी है जो तुम्हें करना है. सो फ्रेंड्स, हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव्स तो देख लिए.
लेकिन कुछ फॉर्मूले जो हमें उनके डेरिवेटिव्स निकालने में हेल्प करेगी। पहले अब वो फॉर्मूलेज देखते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स, दिस इज एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये भी एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स एंड कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ये भी एक्स। सो अगर पूरे फॉर्मूले हम देखें तो बहुत ही इजीली हम याद कर सकते हैं। साइन इनवर्स साइन, ये दोनों कैंसिल हो गए, इस तरह से हम याद कर सकते हैं उसे, एंड ऑल दिस फॉर्मूले विल बी इक्वल टू एक्स। सो ये पहला पैटर्न हम याद कर लेंगे। सेकेंड, साइन इनवर्स कॉस एक्स। अब कैसे सॉल्व करेंगे? साइन इनवर्स साइन एक्स तो हमें समझ में आ रहा था एक्स है, बट अब फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स कॉस एक्स। अब इसे कैसे करेगी? हाँ, साइन इनवर्स साइन तो हम हमारे हिसाब से हटा रहे थे, बट कॉस तो नहीं हटा सकते ना। हाँ, सो अब इसमें हम इस तरह से ला सकते हैं, साइन इनवर्स कॉस को हम साइन कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। उसी तरह से साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, so this will be equal to pi by 2 minus x. Cos inverse sin x, same cos inverse sin के बदले cos pi by 2 minus x, so ये भी pi by 2 minus x. Tan inverse cot x, so tan inverse कॉट के बदले टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। फोर्थ, कॉट इनवर्स टेन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, so this is pi by 2 minus x. Sec inverse cosec x, sec inverse sec pi by 2 minus x, pi by 2 minus x. And sixth, cosec inverse x, cosec inverse sec x. So cosec inverse cosec pi by 2 minus x, so ये भी pi by 2 माइनस एक्स। सो कुछ हमें ये सब बेसिक फॉर्मूले याद रहना चाहिए इनमें। और साइन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय एक्स। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स। सेम ऐसा ही कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाय एक्स। सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स। एंड सिक्स्थ, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय एक्स। इनमें हम और कुछ फॉर्मूले जो हमें याद रहने चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाई 2। कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई।
सो अगर ये बेसिक फॉर्मूले हमने कर लिए, सो अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। सो सबसे पहले अब ये फॉर्मूले नोट करिए और इसे याद करिए। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम। फर्स्ट, y इज इक्वल टू cot इनवर्स 4x। Differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to cot, so minus 1 upon 1 plus 4 to x का whole square into dy by dx of 4 to x. चैन रूल वाला कंसेप्ट है। So dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus 4 to 2x and dy by dx of 4 to x 4 to x log 4। सो हमारा फाइनल dy by dx आ गया माइनस 4 to x log 4 1 plus 4 to 2x। सेकेंड प्रॉब्लम, y is equal to cosec inverse e to the power minus x। डिफरेंशिएट with respect to x. So dy by dx is equal to cosec है, so minus 1 upon, जैसे cosec इनवर्स x हमारा फॉर्मूला था minus 1 upon x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसी तरह से minus 1 upon दिस अंडर रूट e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब e टू द पावर माइनस एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। सो अब dy बाई डी एक्स होने वाला है e टू द पावर माइनस एक्स, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 2x माइनस 1, और ये जो डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस 1 तो है ही पहले से, e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स एंड फिर माइनस एक्स का माइनस 1। सो दिस विल बी कैंसल्ड, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस 1। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1। सो dy बाई डी एक्स इसे सॉल्व करें, सो डिनोमिनेटर में 1 माइनस e टू द पावर 2x और फिर आ जाएगा e टू द पावर 2x जो अंडर रूट के अंदर है, इसलिए बाहर जाके e टू द पावर x, और फिर यही चीज ऊपर चली जाएगी न्यूमरेटर में e टू द पावर x। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, y is equal to cos inverse x cube। y is equal to cos inverse x cube। So differentiate with respect to x, so देखो अब ये फॉर्मूला मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस क्यूब, पहले क्यूब वाले फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो 3 cos स्क्वायर सेम ये वैसा ही cos इनवर्स x क्यूब। अब cos को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो माइनस साइन सेम ये ऐसा ही cos इनवर्स x क्यूब। अब cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 का स्क्वायर, और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर। बट इतना लेंदी आंसर क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ, अगर जो फॉर्मूले हमने देखे थे, अगर वो फॉर्मूले हमारे ध्यान में है, वो फॉर्मूले हमने याद किए, तो ये प्रॉब्लम बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। देखो इसी को अलग मेथड से यूजिंग दोज फॉर्मूलेज, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब cos इनवर्स x क्यूब। सो हमने देखा था बाय यूजिंग फॉर्मूला cos इनवर्स x इज इक्वल टू x। सो उसी तरह से cos इनवर्स x क्यूब इज x क्यूब। अब वो क्यूब है, सो 3 टाइम्स हम करेंगे, सो y इज इक्वल टू
एक्स क्यूब फर्स्ट टाइम के लिए, सेकेंड टाइम के लिए एंड थर्ड टाइम के लिए. दिस इज एक्स टू द पावर 9. डिफ्रेंशिएट with respect to x dy by dx is equal to 9 x to the power 8. और इसीलिए वो फॉर्मूले याद करना जरूरी है. अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर बनाओ लेंदी वाले. नेक्स्ट फोर्थ, y is equal to cos inverse 1 minus x square. Differentiate with respect to x dy by dx is equal to -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये पूरे का स्क्वायर. और फिर हम इसे वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x. सो dy by dx 2x 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेस टू 4. सो ये माइनस एक्स रेस टू 4 हो जाएगा बाहर जाके, एंड फिर माइनस 2x स्क्वायर. सो ये प्लस 2x स्क्वायर. सो dy by dx इज इक्वल टू 2x अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4. यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, जो बाहर जाके x रहेगा, और वो x और ये x कैंसल. सो चलो इक्वल 2x x 2 माइनस एक्स स्क्वायर. सो dy by dx इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर. फिफ्थ प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x. अब यहां पे भी सेम वैसा ही, अगर हमें फॉर्मूले आता है तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, और फॉर्मूले नहीं आते हैं तो ये प्रॉब्लम भी बहुत लेंदी बन जाते हैं. y इज इक्वल टू tan इनवर्स बेसिक फॉर्मूला 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाई 2 2 and 2 कैंसल, cos x बाई 2 sin x बाई 2 cot x बाई 2 अंडर रूट है इसलिए स्क्वायर भी हट जाएगा. y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x बाई 2 सॉरी cot x बाई 2. फिर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot के बदले हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2. सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स एंड tan हटा पाई बाई 2 माइनस x बाई 2. सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to -1 by 2. सो फॉर्मूले हमने अप्लाई किए, सो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाते. सिक्स्थ, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स सॉरी tan इनवर्स कोसेक x प्लस cot x. y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोसेक x प्लस cot x. सो यही y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोसेक x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन x एंड cot x को cos x बाय साइन x. तो यही प्रॉब्लम अब ऐसा हो गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन साइन x. सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स. अब देख लो 1 प्लस cos x में भी हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 एंड साइन x का फॉर्मूला हमारे पास है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 cos x बाई 2 ये कैंसिल. सेम ऊपर वाले जैसा ही हो गया. y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot x बाई 2 और इसे सॉल्व करेंगे. सो वही पाई बाई 2 माइनस x बाई 2. सो dy बाई dx जो हमारा आएगा दैट विल बी इक्वल टू -1 बाय 2. और इसीलिए अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव्स निकालने तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो कि हमें पूरे फॉर्मूले याद रहना चाहिए. विदाउट फॉर्मूले ये चैप्टर बहुत हार्ड हो जाता है.